New Hope TV, your encounter with God. One day, देखिए एक दिन there was a man who was troubled by evil powers. एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसे दुष्ट शक्तियां, शैतानी शक्तियां बहुत सताती थी। And everything they tried everywhere. देखिए सब कुछ उन्होंने हर जगह आजमा कर देख लिया, And nothing happened. लेकिन कुछ हुआ नहीं। One day this man, he just said, Lord, come into my heart. एक दिन ये व्यक्ति बस कहता है कि प्रभु मेरे दिल में आ। And when he said that, और जब उन्होंने ऐसा कहा, the family members could hear screams in their house. The master has come. We are leaving. We are leaving. We are leaving. और देखिए परिवार के सदस्यों ने इस बात को सुना और उन्होंने बताया कि उन्होंने इस गूंज को सुना कि स्वामी घर में आ रहे हैं, हम निकल रहे हैं। The man was, the man was seated calmly, and from that day there was total deliverance in that man. और वो आदमी बड़े शांत तौर पे बैठा हुआ था और उस दिन उस व्यक्ति को पूरी तरह से और उस परिवार में पूरी तरह से छुटकारा आया। Hallelujah. Hallelujah. He is the living God. वो जीवित परमेश्वर He है। is the Spirit. वही आत्मा है। Hallelujah. Hallelujah. When He comes, my friend, मेरे दोस्त जब वो आता है, all those wicked spirits have to leave. ये सारे दुष्ट आत्माओं को निकलना ही So you होगा। must always say, Lord, come into my life. आपको हमेशा कहते रहना प्रभु मेरी जिंदगी में आ। Then जी you must हाँ। open your heart to the और Lord. आपको अपना दिल प्रभु के लिए खोलना है। You see, Jesus is the door of salvation, but we need to open the door of our spirit also so that He can come into us. तो आप देखते It's हैं both ways. यीशु उद्धार का दरवाजा है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी आत्मा को भी खोलना है ताकि वो अंदर आ सके। देखिए दोनों ओर से See, ये it काम says, करता है। He will dine with me and He with me. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। So we looked at two doors right now. तो अब हमने यहाँ पे दो दरवाजे देख So we लिए। looked at Jesus as the door. We looked at our spirit as a door, तो देखिए हमने यहाँ पर देखा यीशु एक दरवाजे के रूप में और अपनी आत्मा को भी एक दरवाजे के रूप में हमने देखा। How you can receive deliverance. तो आपको हमने बताया कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। Yes, you keep on inviting the Lord. Some of you are troubled by evil spirits and you're saying, how it will happen? Just keep on inviting the Lord. अगर आप दुष्ट शक्तियों के द्वारा सताए जा रहे हैं तो देखिए आप छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? आपको लगातार नियंत्रित तौर पे आपको प्रभु को आमंत्रित करते रहना है। See how it will happen. आपको स्वागत करते रहना। देखिए क्या होता है। Secret. ये एक रहस्य है। Yeah, don't concentrate on chasing them out. Concentrate on inviting the Lord. और देखिए उन्हें खदेड़ कर भगाने के बारे में ध्यान मत लगाएं, लेकिन आपका ध्यान पूरा इस बात पे केंद्रित करें कि आपको प्रभु को आमंत्रित करना है। Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस When you वक्त? think of deliverance in that manner, it becomes so easy. It's a work of grace that He's doing the deliverance rather than we commanding, get out, get out, get out. No. और देखिए जब आप इस तरह से कदम उठाते हैं तो देखिए छुटकारा पाना बड़ा आसान हो जाता है। Yes. ये तो अनुग्रह का कार्य हो जाता है जो आपको कुछ करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु खुद आकर उन चीजों को भगा दे On लगता है। certain places, कुछ खास जगहों पर there are evil powers. ऐसी शैतानी शक्तियां होती हैं। Again, फिर से you just open that door आप बस उस दरवाजे को खोलें, in the spirit and say, Lord, I welcome you in this place. आत्मा के आयाम में उस दरवाजा को खोले और कहें कि प्रभु इस जगह पर मैं आपका स्वागत करता When हूँ। He comes, और जब वो आएगा deliverance will happen. और छुटकारा होने लगेगा। Watch this. देखिए Why don't you do it in your home? क्यों नहीं आप अपने घर में करेंगे? You must be saying, Pastor, I am having problem in my house. शायद आप ऐसा कह रहे हैं कि पासवान जी मेरे घर में बहुत ही समस्या I'm है। having voices. I'm hearing strange things, shadows, evil powers. Just say every day, keep on saying, Lord, I welcome you in my house. Take charge of this house. You are the master of this house. Yes, you are opening a door in the spirit for the Lord to enter your home. आपके घर में आपको ऐसी आवाजें गूंजती हुई Do you सुनाई देती understand हो, या फिर हो सकता है कि आपको घर में साया Deliverance. घूमते हुए फिरते हुए आपको दिखाई देता हो। क्यों ना आप हर दिन ऐसा करें कि प्रभु मेरे घर में आपका स्वागत है। मैं आपको अपने घर में अपने परिवार में बुलाता हूँ। प्रभु आप ही मेरे घर का स्वामी हैं, आप ही मेरे घर का प्रभु हैं, आप ही प्रभु ताबे में लीजिए। देखिए फिर छुटकारा होने लगेगा। Deliverance will happen in your house. आपके घर में छुटकारा होने लग जाएगा। Somebody say, I am receiving this word right now. कोई तो कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ इस Somebody वक्त। say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। Are you listening right क्या now? सुन रहे हैं इस वक्त? Exodus 12. निर्गमन का 12वां And let's अध्याय। read verse 7. I'm reading from the New King James Version. और आइए पढ़ेंगे उससे 7वें वचन में इस वक्त। And it says, and they shall take some of the blood and put it on the two doorposts and on the lintels of the house where they eat. और देखिए वचन में ऐसा लिखा, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाएं। Let's read verse 12 now. अब 12वें वचन में For पढ़ेंगे। I will pass through the land of Egypt on that night, and will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. 12वें वचन में, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। Yes, verse 13. 13वां वचन। Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। And when I see the blood, जब मैं उस लहू को I will देखूंगा pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you.
और तब मैं तुमको लांघ के चला जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। When I strike the land of Egypt. जब मिस्र देश के लोगों को मारूंगा। Here we see Moses instructing the Israelites how to come out of slavery. और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं मूसा इजराइली लोगों को निर्देश दे रहा था कि कैसे उस गुलामी बंधुआई में से बाहर निकल He's के आ giving सकते them हैं। instructions. उन्हें वो निर्देश दे रहा था। The night before they left Egypt, और जिस रात वो मिस्र से निकले उसकी पहली रात, God instituted this special service called the Passover. और देखिए परमेश्वर ने इस खास सत्र को उनके सामने पेश किया जो था फसह की विधि। What was the Passover? ये फसह क्या था? Write this down. लिख लीजिए। The Passover involved taking a spotless lamb without any spot, taking a lamb, और देखिए फसह की विधि यानी पर्व ऐसा था कि एक निष्कलंक मेमने को लेने का, killing it, उसे मार डालना, taking its blood, उसका लहू लेकर and putting it on the door frames. You know, everybody has a door, okay? The door frames, the lintel, the side frames, putting the blood over there. और इसके उस लहू को लेकर घर के अलंगों और जो चौखटें जो होती हैं उन सब पर उनको लगाना था। Those who would be obedient to this instruction, और जो लोग इस निर्देश के प्रति आज्ञाकारी होते, they would be saved from the 10th plague, which would kill the firstborn in every family. और वे 10वीं महामारी जो आने वाली थी, जो हर एक परिवार में से पहिलौठों को मारने वाला, उससे वो बच जाते हैं। The blood on the door signified God's protection for the Israelites. और दरवाजे पर वो लहू जो लगाया जाना, वो इस बात का प्रतीक था इजरायलियों के लिए परमेश्वर की ओर से सुरक्षा। Now, if you've been reading your Bible, you would prophetically understand that this pointed out thousands of years ahead to Jesus. अगर आप बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये तो देखिए हजारों साल पहले जो हुआ था, हजारों साल बाद जो होने वाला यीशु मसीह के कार्यों के बारे में संकेत कर रहा था। You know, John the Baptist called Jesus the Lamb of God who would be slain for the sins of the world. और देखिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु की ओर देखकर कहा कि परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों के लिए घात किया जाएगा, One day the lamb would be sacrificed. एक दिन इस मेमने को बलिदान चढ़ाया जाएगा। The Lord's judgment was coming, and all those who were covered by the lamb's blood, you know, they were saved from the plague in Egypt. और देखिए प्रभु का दंड आने वाला था, और वे सभी लोग जो मेमने के लहू को जिन्होंने लगाए थे, मिस्र में जो आने वाली महामारी थी उससे बच गए थे। In the same way, उसी तरीके से when we receive the sacrifice of the sinless lamb Jesus on the cross, you see, our life is covered by the blood of Jesus. जब हम यीशु जो कि परमेश्वर के निष्कलंक मेमने के बलिदान को ग्रहण करते हैं तो हम भी उसमें ढक दिए जाते हैं। You see, our spirit, our soul is covered with the blood of Jesus. देखिए हमारी आत्मा, हमारा प्राण यीशु के लहू में ढक दिया जाता And है। we are passed from judgment into salvation. फिर उसके बाद हम दंड न्याय में से निकलकर उद्धार में आते हैं। You see, the blood has to be applied on that door. तो आप देखते हैं कि उस दरवाजे पर लहू लगाया जाना जरूरी था। So say with me, right? I cover myself with the blood of तो Jesus. सभी लोग कहें मैं अपने आप को ढकता हूँ यीशु के लहू से। Say that, hallelujah. You must say, I cover my family with the blood of Jesus. और आप कहें कि मैं अपने परिवार को ढकता हूँ यीशु के So लहू you से। see, you need to apply the blood on every door. तो आप देखते हैं हर एक दरवाजे पर आपको लहू को लगाना है। So that door has no other access except accessible to the Lord. Hey! इस वजह से देखिए वो दरवाजा दूसरी किसी चीज, किसी शक्ति के लिए प्रवेश द्वार नहीं बन सकती। You see, there were two brothers called Cain and Abel. आप देखते दो भाइयों के बारे में, कैन और हाबिल नाम था उनका। And Abel offered a pleasing sacrifice to the Lord. हम देखते हैं हाबिल ने जो भेंट चढ़ाया परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। And Cain was jealous of his brother Abel because of God's approval of Abel's offering. और उसके बाद कैन को गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ, जलन होने लगी क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया। When God gives a warning, देखिए जब परमेश्वर कोई चेतावनी देता है we need to take it seriously. हमें उसे गंभीरता से लेना है। You see, I was talking to one person the other day, पासवान जी किसी दिन किसी व्यक्ति से बात कर रहे and थे he told me, Pastor, please pray for me. और उन्होंने बताया कि पासवान जी मेरे लिए प्रार्थना करें। So I said, what should I pray for? पासवान जी ने पूछे क्या प्रार्थना So करूं he मैं? said, तो उन्होंने बताया I'm in the share market. मैं शेयर मार्केट में हूँ, I give certain analysis and things to others. मैं कुछ ऐसे एनालिसिस विश्लेषण जो है मैं दूसरों को देता हूँ। And he said, और उन्होंने बताया, he says, whenever we just were talking for a few और minutes. ऐसे बातचीत हो रही थी कुछ He said, मिनट के लिए। whenever I give some analysis to people, और जब भी कुछ मैं एनालिसिस या विश्लेषण मैं कुछ लोगों को देता हूँ, they take it very seriously, Pastor. बड़े गंभीरता से वे इसे लेते हैं So पासवान जी। please pray that everything goes well with me. तो मेहरबानी करके प्रार्थना करें कि सब कुछ मेरे साथ ठीक ठाक And चले। I wondered, और फिर पासवान जी I हैरान said, how many of us take God's warning seriously? हम में से कितने लोग परमेश्वर की चेतावनी को गंभीरता से लेते हैं? Are you listening right now? सुन रहे, If सुन। that man says, don't buy this, buy that, they will buy. वो व्यक्ति कहेगा कि इससे मत खरीदना, उससे खरीदो, तो लोग उसको खरीदेंगे। They will exactly do what this fellow says. और ये व्यक्ति जो कहता है वही वो करेंगे। In the same way, उसी तरीके से God tells us to be careful of certain thing in His Word, we better listen to it. जब परमेश्वर अपने वचन में किसी चीज के प्रति हमको चेतावनी देता है तो हमें सावधानी से और गंभीरता से उसे लेना चाहिए। God warned Cain he's saying, Cain, if you do well, will you not be accepted? And if you do not do well,
sin lies at the door. और देखिए परमेश्वर ने कैसे कहा, अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और अगर तू भला न करे तो पाप दरवाजे पर छिपा रहता है। What door was the Lord talking about? प्रभु किस दरवाजे के बारे में Again, यहाँ it पे was बात the कर रहे door of the heart. It was the door of the spirit. थे? फिर से कहना चाहते हैं कि ये आत्मा का दरवाजा था, ये हृदय का दरवाजा था। Lord warned Cain, says, if you're not careful enough, और प्रभु ने यहाँ पर कैन को चेतावनी देते हुए कहा, sin will enter through your door. पाप उस दरवाजे में से तुम्हारे अंदर आ जाएगा। And interestingly enough, the Lord showed his heart's desire, revealed his heart's desire to Cain concerning sin. और फिर हम देखते हैं कि उसके दिल की जो लालसा जो थी, परमेश्वर ने वो भी उस पर जाहिर कर दी पाप के बारे में। See what he says, and its desire is for you, but Cain, you should rule over it. You should have dominion over it. Hallelujah. और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, मगर कैन तुझे उस पर प्रभुता करनी है, शासन करना है। See God's desire for us. देखिए परमेश्वर की लालसा The हमारे sin is लिए, at the door, और पाप दरवाजे पर है, but you should rule it. लेकिन तुम्हें उस पर शासन You should करना है, have dominion over it. तुम्हें उस पर प्रभुता करनी And है। many years later, Paul would write, और कई साल के बाद पौलुस ने लिखे, sin shall no longer have dominion over us. पाप की हम पर कोई प्रभुता नहीं होगी। You know why? आप जानते क्यों? Because the blood has been applied. क्योंकि लहू लगाया गया है। You may fall, शायद आप गिर गए and जाए, you need to raise up. लेकिन आपको फिर भी उठना You है, need to rise up आपको उठ खड़े and होना say, है Lord, forgive me. और कहना है प्रभु मुझे क्षमा कर। Move on with God. परमेश्वर से बस आगे बढ़ें Ask God for the grace. और परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे। Watch that. देखिए, That's God's desire was fulfilled through Jesus. और ये परमेश्वर की लालसा और तमन्ना है जो यीशु मसीह के द्वारा पूरी होती है। My friend, मेरे दोस्त, what Jesus did on the cross for us, जो यीशु ने क्रूस पर हमारे खातिर किया, that's the same thing. You need to apply the blood of Jesus every day upon your life. वही चीज आपको करना है। यीशु के लोगों को अपने जीवन के हर एक दिन अपने ऊपर लगाना है। Today, आज there are doors in the spirit. आत्मा में ऐसे दरवाजे हैं। You see, अब देखते हैं। church, great things are going to happen. You see, the enemy is very smart. आप देखते हैं शत्रु बहुत ही चालाक है, He will put the tares among the wheat sometimes. और देख कभी कभी देखिए गेहूं के बीच पर जंगली बीज बो देता है। So, all doors are not of God. हर एक दरवाजे प्रभु की ओर से नहीं, All opportunities are not of God. और देखिए हर एक अवसर जो आपके पास आते हैं वो So परमेश्वर की ओर we से need नहीं। discernment to go through the right doors and not through the wrong doors. तो हमें परखना चाहिए कि कौन से सही दरवाजे और कौन से गलत दरवाजे हैं। Now we're going to come at something very powerful. अब हम आ रहे हैं कुछ बहुत ही जबरदस्त बात पर। There was another man in the Bible and his name was Lot. बाइबल में और एक व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है जिसका नाम था लूत। He lived in a place, Sodom. वो सदोम नामक जगह में रहता था। Now, and many people, they ask me, where was Sodom, Pastor? और देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पासवान जी ये सदोम ये जगह जो है दरअसल कहाँ थी? Yeah, now it's no longer there. You see, I've been many times to Israel. देखिए पासवान जी कई बार इजराइल गए हैं, And one of the reasons I go to Israel is to study the Word of God intensely. और एक मुख्य कारण इजराइल में जाने का पासवान जी का ये होता है कि अध्ययन करते हैं वहां पर जाकर और भी गंभीरता के साथ। And I often meet certain people who are, Bible scholars. और अक्सर ऐसे खास लोगों से वहां मिलते हैं जो कि बाइबल के विद्वान हैं। And one of the Bible scholars said it like this. और देखिए बाइबल के एक विद्वान ने इस तरह से कहा, He says the area of Sodom was near the Dead Sea. और वो जो सदोम नामक जो जगह है मृत सागर के करीब ही था। Of course, many years ago. कई साल पहले I just जमाने want to जाएंगे। share with you, like, look, these things are not just fantasy stuff. This is real stuff. तो आपको बताना चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो कथा कहानियों की चीजें नहीं है, असलियत में हुई बातें हैं। Now, there was a big problem with Sodom, और सदोम के साथ एक बहुत बड़ी समस्या the थी, place where Lot lived. और वह जगह जहां पर लूत रहा करता था। You see, you can't just buy a home anywhere. और देखिए आप अपना घर कहीं पर भी यूं ही नहीं You खरीदते, can't just buy a home anywhere just because it is cheap. और क्योंकि सस्ते में आपको मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना घर कहीं भी खरीद No, लें। no, no, no. नहीं। You buy a home where the Lord tells you to. आप वहीं पर अपना घर खरीदे जहां पर प्रभु You आपसे need to कहता है। pray. आपको प्रार्थना करनी है, You just don't buy a home where you feel everything looks good. और आप अपना घर वहां नहीं खरीद लेते जहां पर आपको महसूस हो रहा है सब कुछ ठीक ठाक You है। see, don't make your decisions only by your eyes. Now, of course, we need to buy a place where it's all good and nice, but we also need to pray the Lord to lead us to the place where we will be staying. और देखिए सिर्फ अपनी आंखों पर निर्भर होकर ही आपको घर नहीं खरीदना है। जी हाँ, यकीनन हमें ऐसे हालात ऐसे माहौल में घर खरीदना जहां पर सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन फिर भी हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए उस सब चीज के लिए। Lot put his house at the wrong place. लूत ने अपना घर यानी अपना डेरा गलत जगह पर खड़ा किया। Genesis 13:13, open your Bibles. उत्पत्ति का 13वां अध्याय उसका 13वां वचन चाहते हैं कि आप बाइबल में खोलें। The men of Sodom were exceedingly, not just wicked, exceedingly wicked. They were exceedingly sinful against the Lord. सदोम के लोग प्रभु के खिलाफ में बड़े दुष्ट और बड़े पापी थे। Lot's home in Sodom probably had a door. Every house is a door. और देखिए लूत का घर उस सदोम में उसका घर का भी दरवाजा, हर एक के पास घर का दरवाजा होता है। Now the purpose of every door is to protect you from intruders.
और देखिए घर का जो दरवाजा जो होता है आपकी रखवाली के लिए होता है दूसरों से, अजनबियों से। In Noah's day, लेकिन नूह के दिनों में the door of the ark prevented the filthy people, the filthy thinkers of that generation from entering the ark. और देखिए नूह के दिनों में ऐसा हुआ कि नूह के जहाज का वो दरवाजा जो था, उस जमाने के जो दुष्ट लोग, जो गंदे घिनौने लोग थे, उनसे बचने के लिए वो दरवाजा था। But in Lot's generation, लेकिन लूत के पीढ़ी में he actually opened the door to speak to these wicked people. उसने दरअसल दरवाजा खोल दिया इन दुष्ट लोगों से बोलने के लिए। Go to Genesis 19 and verses 4 to 6. निकाल उत्पत्ति का 19वां अध्याय। Now before they lay down, now see, two angels came to Lot. और देखिए ऐसा होता है कि दो स्वदूत लूत के पास आते हैं। May the angels of God be released on your behalf. Say, I receive it. Hallelujah. परमेश्वर का स्वदूत आपके पक्ष में मुक्त किए जाएं। बोलिए मैं ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। Now before they lay down, और देखिए उनके सो जाने से now the पहले men of the city, the men of Sodom, both old and young, all the people from every quarter surrounded the house. देखिए लिखा है सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक और चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। And they called out to Lot and said, where are the men who came to you tonight? और लूत को पुकार कर वे कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? Bring them out to us that we may know them commonly. These were homosexual people. उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। देखिए वो समलैंगिक लोग थे, They were perverts. वे दुष्ट लोग थे। Now they're talking to Lot. और देखिए वे लूत से बोल रहे हैं यहाँ। So Lot went out to them through the doorway, shut the door behind him. In other words, Lot came out of that door which was protected him, and he began to speak with those perverts. देखिए आगे वचन में लिखा है, तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया, दरवाजे के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दरवाजा जो था लूत की और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए था, लेकिन यहाँ पर लूत उस दरवाजे में से बाहर निकलकर इन दुष्ट लोगों से बात कर रहा है। Both Noah and Lot had family members, और देखिए लूत और नोहा दोनों के पास परिवार के लोग थे and their family members were behind the door. और उनके परिवार के लोग उस दरवाजे के पीछे थे। But the difference between Noah and Lot, लेकिन नूह और लूत के बीच में फर्क, Noah controlled or regulated what entered through the door, and Lot was compromising. देखिए नूह ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कौन क्या चीज उस दरवाजे से अंदर कदम रखती है, लेकिन यहाँ पर लूत ने समझौता कर लिया। How do I know that? कैसे जानते हैं? Watch this right now. गौर करें। Now Lot is talking to those people. Now he offers them something that is very unimaginable to anybody, और even देखिए today. लूत वहां पर लोगों से बातें कर रहा है और उनके सामने कुछ ऐसी चीजों को पेश कर रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती आज भी। Even today. आज भी Go to Genesis 19 verse 8. उत्पत्ति का 19वां अध्याय He 8वां says, वचन। see now I have two daughters who have not known a man. Please let me bring them out to you, and you do to them as you wish. मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा है, इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करना। See the compromise that Lot is doing. जरा कल्पना करें कि किस तरह का समझौता यहाँ पर लूत कर रहा Now है। from this we know that Noah was a strong leader and he had great influence over his family, where Lot was not a strong leader. He was a compromising man. That's why he could not impact and influence his family, and I'll show it to you. और देखिए इस बात से हम यहाँ पर अच्छे से वाकिफ हो सकते हैं। नूह एक बहुत ही सामर्थ्यशाली व्यक्ति था और उसका अपने परिवार पर अच्छा सा पूरा नियंत्रण था, लेकिन यहाँ एक अच्छा अगुवा भी वो था। लेकिन यहाँ पर लूत को देखते हैं कि वो एक अच्छा अगुवा नहीं था और ना ही अपने परिवार पर उसने नियंत्रण रखा। अभी आपको बताएंगे। Noah was able to bring God's salvation to every one of his family members. और नूह जो था अपने परिवार के हर एक सदस्यों के लिए परमेश्वर का जो उद्धार को ला सका, But Lot lost his family. लेकिन लूत अपने परिवार को गंवा बैठा। I'll tell you. कहते हैं आपसे, One, पहला Lot's own son-in-laws, they made fun of him when he presented the message of the angels of salvation and judgment. They say, hey, forget it, man, what are you talking? और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं लूत के जो दामाद थे उन्होंने ही लूत का मजाक उड़ाया होगा जब स्वर्गदूतों के द्वारा लाए हुए संदेश को जब उसने उनको सुनाया होगा तो ये क्या बोल रहा है करके मजाक उड़ाया Secondly, होगा। Lot offered his daughters to a gang of homosexual people. और दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि लूत ने अपनी बेटियों का जो प्रस्ताव वो ऐसे समलैंगिक लोगों के समूह के सामने रखा। What kind of influence is that? किस तरह का ये प्रभाव था? Point number 3. तीसरा, Lot had no influence over his wife, because when the angels were taking their hand and escaping them through the plains of Sodom and Gomorrah, she was told, don't look back, but still she looks back. हम देखते हैं तीसरी बात यहाँ पर यह थी कि लूत का उसकी पत्नी पर भी कोई प्रभाव नहीं था। जब स्वर्गदूत उसकी पत्नी को और सभी परिवार के लोगों को हाथ पकड़ के जब बाहर ले जा रहे थे और उनसे कहा गया कि पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। Lot's own daughters had no respect for their father, because you see,
They slept with him and had 2 sons from their own father. This is incest. Can you see that? और लूत की बेटियों पर भी देखिए लूत का कोई प्रभाव नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिता के साथ ही गलत संबंध बनाया, उसकी वजह से उनको तो बेटे भी हुए। जरा सोच सकते हैं यहाँ पर। So you can imagine this man, he lost everything. तो कल्पना करिए कि इस व्यक्ति ने अपना सब कुछ गंवा दिया, Because क्योंकि the door that he opened in his दरवाजा life, जिसे उसने अपने जीवन में खोला, the Bible calls him a righteous man. लेकिन फिर भी बाइबल उसे धर्मी व्यक्ति कहती If you है। read the book of New Testament, अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे, he says Lot was a righteous man. वहां पर जिक्र हुआ है कि लूत एक धर्मी व्यक्ति था। Read your Bible. अपना बाइबल पढ़िएगा। But you see this righteous man lost everything लेकिन फिर भी देखते हैं इस धर्मी व्यक्ति ने अपना सब कुछ गंवा दिया, because he opened the wrong door. क्योंकि उसे गलत दरवाजा खोला। Look at Noah. नूह को देखें, He controlled that door. उसे दरवाजे पर नियंत्रण He रखा। would not allow anything to just come in like that. उसने इजाजत नहीं दी कि बस कोई भी चीज अंदर ही Go to Joshua 6 and verse 1. यहोशू का 6वां अध्याय उसका पहला वचन। Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out, none came in. और देखिए इस प्रकार से हुआ, यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर या कोई अंदर जाने आने We see नहीं how पा the रहा था। people of Jericho, though they were not believers, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यरीहो के लोगों को, हालांकि वे विश्वासी नहीं थे, they knew how to control the doors. वे पूरी तरह से इस बात से वाकिफ थे कि दरवाजे पर कैसे नियंत्रण रखा Many जाता है। Christians, they don't know how to control the doors of their life. और बहुत सारे मसीही लोग अपने जीवन के दरवाजे पे नियंत्रण कैसे रखा जाता है इस बात को नहीं They जानते। compromise. वे समझौता करते It's okay, हैं, yeah. ये चलता है, It's fine. ये ठीक है। I'll go on Sunday and do praise the Lord and hallelujah. मैं रविवार को जाकर प्रभु की स्तुति और हालेलुया बस बोल के But today आऊंगा, is a Saturday night. लेकिन आज तो शनिवार की रात है Just ना, let me chill out, man. चलो मुझे मजा लेने दो। No, my friend. नहीं मेरे You दोस्त, can't allow certain things to happen in your life. आप अपने जीवन में कुछ चीजों को होने की इजाजत नहीं दे सकते। You see, it will not only affect you, it will affect your family. लेकिन क्योंकि आप देखते हैं इसका सिर्फ आप ही पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके परिवार पर भी प्रभाव You may डालेगा। save yourself and lose your family. शायद आप अपने आप को तो बचा ले, लेकिन अपने परिवार को आप गंवा बैठेंगे। How Lot must have cried. कैसे लूत रोया होगा, He lost everything. वो सब कुछ गंवा His बैठा, son-in-laws, उसके दामाद, his daughters, उसकी बेटियों his को, wife. उसकी पत्नी, He alone was saved बस सिर्फ वो अकेला ही बच गया by grace. अनुग्रह से। Church of Jesus Christ. यीशु मसीह की कलीसिया, Sometimes the unbelievers are so careful. They say ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. We can't do this, we can't do that. But Christians, they say it's okay. God will forgive us. We have to be careful of what doors we open. कभी कभी देखो जो अविश्वासी लोग हैं वो बहुत ही सावधानी बरतते हैं कि क्या हमें नहीं करना है, क्या हमें करना है, लेकिन हम बहुत सारे मसीह जो होते हैं हम बिल्कुल ढीला ढाला रवैया दिखाते हैं। We have to be careful of what doors we open. हमें सावधानी बरतनी है कि कौन सा दरवाजा हम खोलते हैं, We have to be careful of what we let in through those doors. और हमें सावधानी बरतनी है कि किन चीजों को हम उस दरवाजे में से आने की There इजाजत are देते doors हैं। in the spirit. आत्मा में ऐसे दरवाजे हैं, There are doors of prosperity. There are doors of healing. Masaka. समृद्धि के ऐसे दरवाजे हैं, चंगाई के दरवाजे हैं। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Doors can open anywhere, दरवाजा कहीं भी खुल सकता है, in any place. किसी भी जगह पर। That's what I want to tell you right now. यही तो आपसे हम कहना चाहते हैं इस वक्त। Wherever the presence of God is, doors will open. You see, one day the people, they brought a man to Jesus. और देखिए जहां कहीं प्रभु की उपस्थिति होती है वहां पर दरवाजा खुल सकता है। देखिए एक दिन ऐसा होता है कि लोग एक व्यक्ति को यीशु के पास लाए, And they couldn't get in through the physical door. और देखिए भौतिक दरवाजे से वो अंदर नहीं आ But सके, it was the will of God for that man to be healed. लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो व्यक्ति चंगा हो जाए, They had faith in the Lord. और उनका प्रभु में विश्वास So था। even if physical doors are closed for you, हालांकि देखिए भौतिक दरवाजा आपके लिए क्यों नहीं God बंद will हो, open some other doors. परमेश्वर कुछ Hallelujah. अलग दरवाजा आपके लिए खोल देगा। Somebody is receiving right कोई now. तो ग्रहण कर रहा है इस वक्त। बोले सब दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए सर, दरवाजे बंद हो गए तो प्रभु नए दरवाजे खोलेगा. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? New doors will open. नए दरवाजे खुल So they जाएंगे। took the man up तो उन्होंने उस व्यक्ति को ऊपर ले and a गए, new door opened. नया दरवाजा खुल गया, Because you see that man was in the will of God. क्योंकि आप देखते हो वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा में था, People that were carrying him, they were praying. और वे लोग जो उसे उठाए हुए थे वो प्रार्थना कर रहे थे, The door opened for them. दरवाजा उनके लिए खुल गया। My friend, today my doors open for you. मेरे दोस्त आपके लिए दरवाजा Are खुल you जाए। crying today saying, Lord, all the doors are shut? क्या आप रो रहे कहते हुए कि प्रभु सारे दरवाजे बंद है? If you believe in the Lord, अगर आप प्रभु में विश्वास if you करेंगे, call on the name of Jesus, अगर आप यीशु के नाम को where पुकारेंगे, the doors were shut, जहाँ दरवाजा बंद था, God will break open new doors for you. परमेश्वर आपके लिए वही नया दरवाजा खोल Mark देगा। my words, what I'm saying देख right लीजिएगा जो now. कह रहे हैं हम इस Sir, वक्त, the जनाब, Lord will do it for you.